Hello students. Today we are going to learn about the next step from the chapter Reconstitution of Partnership when there is a change of profit sharing ratio among existing partners. So today we are going to discuss the second step. As I already told you, there are 8 steps in which this topic will be covered. Yesterday we discussed step number 1, that is calculation of gaining and sacrificing ratio, and today I am going to teach you the second step, and that step 2 was treatment of goodwill. So first question that arises, why there is a need of treating goodwill when there is a change in profit sharing ratio among existing partner? Very first reason is when there is a change in profit sharing ratio among partner, one group of partner is going to sacrifice or surrender his share. Another group of partner is to gain that share. So the person who is gaining share of other partner, he should compensate that partner who is surrendering his share for him. अब एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है. अब जो गुडविल है बेटा, that has been created by both the partners and according to the old agreement उनका रेशियो कुछ और था. अब जब आपका गुडविल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया तो उससे जो पुराना पार्टनर है जिसकी रेशियो ज़्यादा थी, जिसके पास ज़्यादा शेयर था, इन फ्यूचर ही विल बी गेटिंग लेस शेयर, तो वो तो उसको तो नुकसान हो गया. सो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज ऑलवेज डन टू कंपनसेट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. रिमेंबर वन थिंग, व्हाई देयर इज अ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इट इज टू बी डन, एंड द आंसर इज treatment of goodwill is required at the time of reconstitution of partnership to compensate sacrificing partner to for surrendering his share of profit in favor of gaining partner. So this is the answer, because in case of in examination also this question will be asked many times. They will be asked you why there is a need of treatment of goodwill. So the basic reason for the treatment of goodwill at the time of reconstitution, जब मैं reconstitution कह रही हूँ, बार बार ये बात हो रही है, ट्रीटमेंट हो रहा है, ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग में भी होगा, ये एडमिशन में भी होगा, ये रिटायरमेंट में भी होगा, ये डेथ में भी होगा. एवरी टाइम वी नीड टू, वेन एवर पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना है. And the basic reason is to compensate. We are compensating sacrificing partner for surrendering his share of profit in favor of gaining partner. So this is the basic reason for this concept. Beta, we have already discussed about this concept of goodwill in our previous chapter. So let's have a quick revision of the topic that we have already discussed. As we know that, we are already knowing that there are 2 types of goodwill, right? What are these 2 types? It is purchase goodwill
and this is self-generated goodwill. Now first of all, what is purchased goodwill? Purchased goodwill is the goodwill that partnership firm has purchased at the time of purchasing somebody business. So if any partnership firm has purchased somebody's business, at that time they have paid for the goodwill also. So whatever the amount they have paid for the goodwill is like an asset to the business that firm wanted to write off from their business. So that's why it is shown. Where it is shown? Shown in the balance sheet on the asset side, where you can find out whether there is any purchase goodwill in the question or not. So you have to see the balance sheet. On the balance sheet, in the balance sheet on the asset side, if goodwill is written in the asset, it means it is a purchase goodwill. What we need to do with this goodwill? We are going to show this goodwill in the balance sheet till the time it is completely written off from the books, right? So what we need to do of purchase goodwill when there is a reconstitution of partnership? So देखिए इसका ट्रीटमेंट हमने क्या लिखा है? It is to be written off. क्या करना है इसको? Write off करना है among all partners in old ratio, right? सारे पार्टनर्स मिलकर इसको ओल्ड रेशियो के अंदर इसको जो है इसको राइट ऑफ करेंगे. राइट ऑफ का मतलब होता है हमने पार्टनर से इस एक्सपेंडिचर को ले लेना है कि भाई ये बिजनेस का एक्सपेंडिचर है, अब आपकी रेशियो चेंज हो रही है, तो ये जो प्रीवियस गुडविल का जितना भी एक्सपेंस है वो आप सभी मिलकर दे दीजिए, राइट? तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू कंप्लीटली रिटर्न ऑफ फ्रॉम द पार्टनर्स अकाउंट्स, राइट? अनदर टाइप ऑफ गुडविल इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल. ये क्या होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल? दिस सेल्फ जनरेटेड गुडविल मीन्स द गुडविल विच हैज बीन क्रिएटेड बाय पार्टनर विद अ कंटिन्यूस हार्ड वर्क इन द पास्ट, राइट? तो अपनी कंसिस्टेंट एफर्ट से उन लोगों ने दिन रात काम करके बिजनेस के लिए एक नाम जो है अर्न किया है. दे हैव क्रिएटेड अ नेम फॉर द कंपनी और फॉर द फर्म. सो दिस गुडविल इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल. परचेज गुडविल, आपने कभी कोई बिजनेस खरीदा, उसके साथ जैसे आपने बाकी एसेट्स खरीदे वैसे गुडविल भी एक एसेट आपने खरीदा. इट इज दैट्स व्हाई इट इज शोन इन द बैलेंस शीट जस्ट लाइक एनी अदर एसेट. बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है वो ये बैलेंस शीट में आपको नहीं मिलेगी. तो हाउ वी कैन कैलकुलेट इट? तो हमने लास्ट चैप्टर में सीखा था हाउ टू कैलकुलेट गुडविल. तो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस गुडविल either by average profit method or by super profit method or capitalization of average profit or super profit method, and in some time this value of goodwill is given in the question, that is in the adjustment. तो ये वाली जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है ये एडजस्टमेंट में दी होती है. तो हमारे पास दो क्लास की गुडविल आ गई. अच्छा, व्हाट वी नीड टू डू ऑफ दिस गुडविल? इस गुडविल का क्या करेंगे? नीड टू पास एडजस्टमेंट एंट्री फॉर दिस. जो हम अभी आपको इससे पहले लिख रहे थे ना कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज रिक्वायर्ड बिकॉज वी नीड टू कंपनसेट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर फॉर सरेंडरिंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ गेनिंग पार्टनर. तो हम किस गुडविल के लिए ये कह रहे हैं? ये हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए कह रहे हैं कि जो पार्टनर्स ने पास्ट में अपनी गुडविल बनाई है उसको राइट ऑफ करने के लिए उसको एडजस्ट करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए एडजस्टमेंट एंट्रीज को पास करेंगे. कैसे पास करेंगे? लेट्स सी. So we are going to discuss the journal entries for the purchase goodwill also and for the self-generated goodwill also. Let us see how journal entries will be passed in these two cases. So first case we have taken for writing of purchased goodwill. As I told you, if there is any purchased goodwill shown in the balance sheet, if you will look at the balance sheet and there is a amount of goodwill shown in the balance sheet on the asset side, it has to be written off whenever a reconstitution is done. So what journal entry we need to pass for this? We will pass all partners capital account debit. All partners. If there are two partners, both will be debited. If there is a three partners, three will be debited. If there are four partners, four will be debited. So all the partners will be debited to goodwill accounts. Now what narration we will be write? Goodwill written off among all partners in old ratio, right? For example, at the time of reconstitution, value of goodwill
in the balance sheet is 60,000 and old ratio is 1:1:1 and there are three partners A, B and C. So how the entry will be passed, I am going to show you. What example we have taken? We are taking one example to explain this entry. So when reconstitution is done, the value of goodwill appearing in the books. Appearing in the books लिखा है या बैलेंस शीट दे रखी है, वहां आप देख पा रहे हैं दोनों का मतलब सेम ही है. बैलेंस शीट में दिख रही है तो अपीयरिंग इन द बुक है. अगर आपको बैलेंस शीट ना देके ऐसे लाइन दी है कि अमाउंट ऑफ गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स, इसका अपीयरिंग इन द बुक्स मतलब बैलेंस शीट में दिख रही है. इट इज 60,000 and the old ratio among the partner is 1:1:1. So how this entry will be passed? तो एंट्री तो यही पास करेंगे, लेकिन अब हमको बाय नेम एंट्री पास करनी है. तो ऑल पार्टनर डेबिटेड लिखा था, तो ऑल पार्टनर इज ए, बी एंड सी. A's capital account debit, B's capital account debit, then C's capital account debit to goodwill account. Right? So the amount of goodwill was 60,000. So 20,000 ओल्ड रेशियो में तीनों के अकाउंट से हमने ये अमाउंट डेबिट कर देना है, बिकॉज ये बिजनेस का पहले का एक्सपेंस है जिसको पहले के पार्टनर पहले की रेशियो के अंदर है ना, इन देयर ओल्ड रेशियो दे विल बी राइटिंग ऑफ. तो दे ऑल आर टेकिंग दिस अकाउंटेबिलिटी. यस, ये हमारे टाइम का एक्सपेंस है, हम ही इसे बियर करेंगे. सो उन्होंने इसको राइट ऑफ कर लिया. तो परचेज गुडविल के लिए तो बेटा दिस एंट्री यू नीड टू पास ऑन. This is the entry you need to pass, right? If it is given in the question, अगर purchase goodwill नहीं दी है तो then this entry will not come, right? The second type of goodwill is when self-generated goodwill is given, and I told you कि self-generated जो goodwill होती है उसके लिए हमको adjustment entry pass करनी है. तो what is that adjustment entry? Adjustment entry is gaining partners capital oblique current account. Why I have written capital oblique current account? Because in our fundamental we have studied there are two types of partners capital account. One is fixed capital account and other one is fluctuating capital account. So when partners agree to maintain the fixed capital, so they have to pass all the entries in the current account. But if they are having fluctuating capital, they are going to maintain only one account, that is capital account. So depending upon the type of capital account partners they have decided to prepare, तो उसके हिसाब से ये एंट्री पास होगी. अगर क्वेश्चन में इंडिकेशन है कि फिक्स कैपिटल फॉलो किया जा रहा है तो एंट्री करंट अकाउंट से पास होगी, और इफ क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन दिस इशू तो फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से एंट्री होगी. बट एडजस्टमेंट एंट्री हमेशा यही होगी. कौन कंपनसेट कर रहा है? गेनिंग कर रहा है. किसको कंपनसेट कर रहा है? सेक्रीफाइसिंग को कर रहा है. तो गेनिंग के अकाउंट से पैसे निकालकर सेक्रीफाइसिंग वाले पार्टनर को दे देना है. सो द एडजस्टमेंट एंट्री इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एंड यहाँ पर जो गौर करने वाली बात है, मैं वर्ड गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग यूज कर रही हूँ, तो रेशियो भी यहाँ पर गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग ही ली जाएगी. एग्जाम्पल के तौर पे कल हमने एक क्वेश्चन किया था, राम और श्याम बाबू. हमने कहा था राम की ओल्ड रेशियो थी 1/2, न्यू रेशियो थी 3/4, राइट? और हमारे पास इसका जो रेशियो आया था वो आ गया था -1/4, जहां पे राम गेन करता था. तो गेनिंग रेशियो हमारे पास आ गई 1/4, राइट? सिमिलरली जो श्याम था उसका जो रेशियो आ रहा था हमारे पास ये पॉजिटिव आया था, तो श्याम इज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 1:4, राइट? तो ये कल हमने
एग्जाम्पल किया था आपके साथ जहां पे राम गेन कर रहा है और श्याम सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इस एंट्री में क्या चेंज होगा बेटा? नाम चेंज हो जाएंगे। गेनिंग वाले का नाम डेबिट करना है, तो हु इज गेनिंग? राम। एंट्री विल बी राम कैपिटल अकाउंट डेबिट। और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? श्याम। तो यहां लिखेंगे टू श्याम कैपिटल अकाउंट, राइट। तो जो गेन कर रहा है उसको डेबिट कर दिया, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसे क्रेडिट कर दिया। एंट्री तो बेटा कंप्लीट हो गई ना। क्वेश्चन कम्स व्हाट अमाउंट टू बी रिटन। इफ आई टेक दिस गुडविल ओनली, अगर मैं मान लेती हूँ कि गुडविल 60,000 ही है ना, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 60,000 है, तो 60,000 गुडविल का 1/4, नॉट कंप्लीट 60,000, सिर्फ जितना हिस्सा उसने गेन किया है, राम को 1/4 मिला है। माइनस इग्नोर कर देंगे बेटा, माइनस का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। माइनस सिर्फ इंडिकेट कर रहा है हु इज गेनिंग एंड हु इज सेक्रीफाइसिंग, तो माइनस को नहीं कंसीडर करेंगे। इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन, 1/4 इज द शेयर। तो 1/4 शेयर के लिए आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे 60,000 का। आई एम रबिंग दिस टू शो यू द कैलकुलेशन, राइट। इन केस वैल्यू ऑफ गुडविल इज 60,000, तो गेन शेयर कितना आ गया बेटा? गेनिंग रेशियो इज 1/4, so Ram will compensate 1/4 of 60,000. That's come rupees 15,000. So this entry will be passed by 15,000. राइट। तो हमने क्या किया? हमने सेल्फ जनरेटेड गुडविल निकाली। कितनी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, कितना गेनिंग रेशियो है। गेनिंग रेशियो स्टेप नंबर 1 से पता चल जाएगा हमें, ठीक है। स्टेप नंबर 1 से आपको गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग मिल जाता है, इसलिए हमेशा स्टेप 1 पहले होता है, फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता है, क्योंकि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए हमें गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए। सो स्टेप नंबर 1 से हमें गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिल गया। यहाँ से हमें वैल्यू हमने निकाल ली या हमें क्वेश्चन में दी हुई है, एडजस्टमेंट देखनी पड़ेगी। अगर ये कैलकुलेटेड नहीं है तो पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप लगाएंगे। इफ इट इज गिवन तो हम सीधा यही स्टेप लगा देंगे। एंड आफ्टर दैट अमाउंट का 15,000, तो उसको 15,000 का बेनिफिट मिल रहा है, दैट ही विल कंपनसेट टू श्याम, राइट। सो इन दिस वे द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हैज टू बी डन। सो आज जो है आप इसी से रिलेटेड, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड illustration कीजिएगा। I will be sending you the back exercise which you are expected to do, right? Thank you.